Hello students, welcome to the lecture series of discrete structure and theory of logic. In today's lecture, we will cover the recurrence relation. Recurrence relation is the important topic of Unit 5 in AKTU syllabus. It is also important in exam point of view as well as in competitive examination like GATE, NET, etc. So, before understanding the concept of recurrence relation, uh, we start it with फाबोनेकी सीरीज. फाबोनेकी सीरीज आप सबको मालूम है कि कैसे बनती है. इट विल बी द सम ऑफ इट्स प्रीवियस टू टर्म लाइक 0 1 1 2 3 5 8 एंड सो ऑन. अब इस फाबोनेकी सीरीज में अगर हम बात करते हैं तो अगर मुझे नेक्स्ट टर्म निकालनी होगी तो नेक्स्ट टर्म मुझे उसकी प्रीवियस टर्म टू टर्म्स को ऐड करके निकलेगी. लाइक अगर ये मेरी फर्स्ट टर्म है, दिस इज योर सेकेंड टर्म, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ. अब अगर मुझे एट्थ टर्म निकालनी है तो एट्थ टर्म विल बी द सम ऑफ सेवेंथ टर्म प्लस सिक्स्थ टर्म. Seventh term is 8 and sixth term is 3. Sorry, it's 5. Sixth term is 5. So it will be 13. तो eighth term मेरी आ गई 13. अब अगर सिमिलर वे में मुझे नाइन्थ टर्म निकालनी है तो इट विल बी द सम ऑफ एट्थ टर्म प्लस सेवेंथ टर्म. तो eighth term will be eighth term it's 13 and seventh term is 8. Answer will be 21. तो ninth term आ गई मेरी 21. अगर मैं इस इक्वेशन को जनरलाइज्ड फॉर्म में लिखूं तो इट विल बी ए एन इज इक्वल्स टू ए एन माइनस वन प्लस ए एन माइनस टू. दिस इज नोन एज recurrence relation or recurrence equation. That means when the next term it's depend on its previous term, it is known as the recurrence relation. In this Fibonacci series, first two values a1 is equals to 0 and a2 is equals to 1. These first two values are known as the initial condition जो आपको given होगी. Okay, sometimes these initial condition also known as the base value. Okay, तो रिकरेंस रिलेशन में कोई ना कोई इनिशियल कंडीशन गिवन होगी प्लस उस इनिशियल कंडीशन के बेसिस पे आप फर्दर इक्वेशन फर्दर सीक्वेंस फाइंड आउट करते हो ऑन द बेसिस ऑफ दैट कि उसकी प्रीवियस टर्म जो उसकी नेक्स्ट टर्म है वो उसकी प्रीवियस टर्म पे डिपेंड करेगी. यानी इस फाबोनेकी सीरीज को अगर मैं इस तरीके से डिफाइन करूं कि ए जीरो इज इक्वल्स टू 0, a1 इज इक्वल्स टू 1 एंड an is equals to an minus 1 plus an minus 2 where n starts from 2 0 1 2. So this is known as the recurrence relation. So in the recurrence relation, a relation in which its next term is depend on its previous term is known as the recurrence relation. In any recurrence relation, some initial conditions or base values will be given. Let's take another example. Suppose I have a series 1, 2, 2, 4, 8, 32. In this case, in this series, if a0 is equals to 1 and a1 is equals to 2, then an is equals to an minus 1 multiply an minus 2. This is your रिकरेंस रिलेशन फॉर द गिवन इक्वेशन. यहाँ पे आपको अगर 0 टर्म दी हुई है, 1 टर्म दी हुई है, 2 टर्म अगर आपको निकालनी है तो 2 टर्म इज द बेसिकली मल्टीप्लीकेशन ऑफ इट्स प्रीवियस टर्म. Third term is the multiplication of its previous two term. Like a3 is equals to a2 multiply a1. a2 की value थी 2, a1 की value थी 2. Answer will be 4. तो this is your recurrence relation. तो इस recurrence relation में हम ये कह सकते हैं कि its next term will depend on the multiplication of its previous two
terms, and where a0 is equals to 1, a1 is equals to 2 are the initial conditions. तो मैथमेटिकली अगर हम रिकरेंस रिलेशन की डेफिनेशन को डिफाइन करें तो बेसिकली इट इज अ सीक्वेंस a0 a1 a2 up to ar up to an is the equation which relates its previous one or more values, one or more values. ओके अब यहाँ पे समटाइम्स हम रिकरेंस रिलेशन को डिफरेंस इक्वेशन भी बोलते हैं. Difference equation, that means recurrence relation, also known as the difference equation, and recurrence relation or difference equation is written as AR minus AR minus 1 minus AR minus 2 is equals to 0. Sometimes it is also written as AR is equals to AR minus 1 plus AR minus 2. आप कुछ भी लिख सकते हो, चाहे लेफ्ट हैंड साइड रखो सारी वैल्यूज, चाहे राइट हैंड साइड रखो. ओके, डिपेंड्स के आपकी इक्वेशन क्या है, डिपेंड्स आपकी सीरीज क्या है, फंक्शन क्या है, उस बेसिस पे हम रिकरेंस इक्वेशन या डिफरेंस इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं. नेक्स्ट आता है डिफरेंस इक्वेशन या रिकरेंस इक्वेशन का ऑर्डर. What is the order of given recurrence relation? क्वेश्चन जनरली एग्जाम में 2 नंबर में पूछ लेते हैं, गेट के एग्जाम में पूछ लिया जाता है. Like I have a recurrence AR minus AR minus 1 minus AR minus 2 is equals to 0. अब अगर मुझे इसका ऑर्डर निकालना है तो ऑर्डर विल बी हाईएस्ट सबस्क्रिप्ट माइनस लोएस्ट सबस्क्रिप्ट. कैसे? हाईएस्ट सबस्क्रिप्ट तो R हो गया माइनस लोएस्ट सबस्क्रिप्ट हो गया R माइनस 2 यानी R माइनस R प्लस 2, R से R कैंसिल, आंसर विल बी 2. तो इस पर्टिकुलर रिकरेंस रिलेशन का जो ऑर्डर आएगा दैट विल बी द 2. सिमिलर वे में अगर एक रिकरेंस मुझे दे दिया AR प्लस 1 माइनस AR माइनस 1 इक्वल्स टू 0, इसका ऑर्डर क्या होगा? हाईएस्ट सबस्क्रिप्ट R प्लस 1, लोएस्ट सबस्क्रिप्ट R माइनस 1, यानी R प्लस 1 minus R minus 1, that means R plus 1 minus R plus 1, R से R cancel 2. ओके, सिमिलर वे में अगर मुझे एक इक्वेशन दे दी AR माइनस 1 इक्वल्स टू 0, इसका अगर मुझे ऑर्डर निकालना होगा तो इट विल बी 1. R माइनस 1, R से R कैंसिल, आंसर विल बी 1. तो किसी भी रिकरेंस रिलेशन का ऑर्डर निकालने के लिए हम उसके हाईएस्ट सबस्क्रिप्ट से लोएस्ट सबस्क्रिप्ट को माइनस करते हैं, देन वी गेट द ऑर्डर ऑफ दैट पर्टिकुलर रिकरेंस रिलेशन. नेक्स्ट आता है रिकरेंस रिलेशन की डिग्री. कैसे हम फाइंड आउट करते हैं? रिकरेंस रिलेशन की डिग्री होती है हाईएस्ट पावर ऑफ AR fn जो भी कोई फंक्शन है, yn एटसेट्रा. ओके, लाइक अगर मुझे दे दिया AR स्क्वायर माइनस AR माइनस 1 प्लस 3 इक्वल्स टू 0, तो इसकी अगर मैं डिग्री निकालूंगी तो इसकी डिग्री होगी 2, क्योंकि हाईएस्ट पावर AR की यहाँ पे 2 है. और अगर मैं ऑर्डर निकालूंगी तो ऑर्डर विल बी 1. कैसे? R माइनस 1, R माइनस R प्लस 1, R से R कैंसिल 1. सिमिलर वे में अगर मुझे दे दिया गया AR प्लस 1 स्क्वायर या क्यूब ले लेते, क्यूब माइनस AR स्क्वायर माइनस AR माइनस 1 इक्वल्स टू 0, तो इस केस में डिग्री हो जाएगी 3, क्योंकि हाईएस्ट पावर AR की 3 है और ऑर्डर बिकम्स द 2. तो अगेन अगर मुझे किसी रिकरेंस रिलेशन की डिग्री निकालनी है तो इट विल बी द हाईएस्ट पावर ऑफ AR, और अगर मुझे ऑर्डर निकालना है तो हाईएस्ट सबस्क्रिप्ट माइनस लोएस्ट सबस्क्रिप्ट विल बी द ऑर्डर ऑफ दैट पर्टिकुलर रिकरेंस रिलेशन. ऑर्डर निकालना या डिग्री निकालना एकेटिव एग्जाम में 2 नंबर में पूछ लिया जाता है, गेट के एग्जाम में भी आता है 2 नंबर में या 1 नंबर में पूछ लिया जाता है.
नेक्स्ट आता है लीनियर रिकरेंस रिलेशन। लीनियर रिकरेंस रिलेशन, लीनियर रिकरेंस रिलेशन का मतलब है कि एक ऐसा रिकरेंस रिलेशन जिसकी डिग्री 1 होगी, डिग्री विल बी 1। ठीक है, लाइक A0 AR प्लस A1 AR -1 प्लस A2 AR -2 and so on, AR A0 equals to Fn. This is your linear recurrence relation. Sometimes this relation also known as linear कोफिशिएंट रिकरेंस रिलेशन या कांस्टेंट कोफिशिएंट लीनियर रिकरेंस रिलेशन। कुछ बुक्स में जब आप बुक्स से देखोगे, रेफर करोगे, तो ये रिलेशन आपको कुछ बुक्स में लीनियर रिकरेंस रिलेशन के नाम से दिया होगा, कुछ बुक्स में कांस्टेंट कोफिशिएंट लीनियर रिकरेंस रिलेशन के नाम से होगा। कांस्टेंट कोफिशिएंट का मतलब होता है कि हर वेरिएबल, हर AR के साथ कोई ना एक कांस्टेंट ऐड होगा, वेयर कांस्टेंट आर A0 A1 A2 AR. Okay, linear, why we called it as a linear recurrence relation? Because its highest degree is 1. Okay, क्योंकि यहाँ पे AR की डिग्री 1 है. When we talk about the order, its highest order minus lowest, highest subscript minus lowest subscript will be the order of that particular, यानी R minus जो भी order आता है उसके according. तो अगर मैंने ये लिखा A0 AR प्लस A1 AR -1 A0 is equals, या AR, it will be AR is equals to Fn. This is your constant coefficient linear recurrence relation. ओके, कांस्टेंट A0 A1 A2 AR कांस्टेंट हो जाएंगे, लीनियर डिग्री 1 है, ऑर्डर आप निकाल सकते हो जो भी हाईएस्ट सब्सक्रिप्ट लोएस्ट सब्सक्रिप्ट दिया है। फॉर एग्जांपल अगर मुझे दिया गया 3 AR -2 AR -1 प्लस 4 इक्वल्स टू 0, तो दिस इज योर लीनियर कांस्टेंट कोफिशिएंट रिकरेंस रिलेशन। डिग्री 1 है, 3 2 4 कांस्टेंट हो गए, ऑर्डर निकल गया R -1 यानी 1, ऑर्डर भी 1 है, इसमें डिग्री भी 1 है, और ये दिस इज योर कांस्टेंट कोफिशिएंट एंड Fn की वैल्यू है 0। अब यहाँ पे एक टर्म आती है होमोजीनियस, homogeneous recurrence relation and non-homogeneous recurrence relation. Non-homogeneous recurrence relation. होमोजीनियस एंड नॉन होमोजीनियस रिकरेंस रिलेशन में क्या डिफरेंस है? अगर हम सबसे पहले बात करते हैं होमोजीनियस रिकरेंस रिलेशन की, होमोजीनियस रिकरेंस रिलेशन में सपोज एक मेरे पास रिकरेंस दिया हुआ है A1 A0 AR minus A1 AR -1 plus A2 equals to Fn. If in homogeneous recurrence relation में Fn will be 0 if right hand side of recurrence relation is 0, then it is known as homogeneous recurrence relation. होमोजीनियस रिकरेंस रिलेशन, अगर आपके रिकरेंस रिलेशन की राइट हैंड साइड दैट इज Fn अगर 0 है, देन इट इज नोन एज होमोजीनियस रिकरेंस रिलेशन। इफ अगर आपका राइट हैंड साइड दैट इज Fn does not equals to 0, if Fn does not equals to 0, then it is known as non-homogeneous. Okay,
होमोजीनियस के केस में Fn की वैल्यू 0 होगी और नॉन होमोजीनियस के केस में Fn की वैल्यू नॉन जीरो होगी। ठीक है, जैसे अगर मुझे एक रिलेशन दे दिया 3AR माइनस या +1 -2AR +3 इक्वल्स टू 0, तो उस केस में ये आपका हो जाएगा नॉन होमोजीनियस रिकरेंस रिलेशन। तो यहाँ पे Fn की वैल्यू 0 है, देन इट इज Fn is equals to 0, then it is homogeneous solution. Homogeneous homogeneous recurrence relation. ओके वहीं पे अगर मैं आपको एक रिलेशन देती हूं 3AR -1 -2AR -2 इज इक्वल्स टू 2 to the power r। इस पर्टिकुलर रिलेशन में एफ आर की वैल्यू या एफ एन की वैल्यू नॉन जीरो है, बिकॉज हेयर एफ एन इज इक्वल्स टू 2 to the power r, देन इट इज अ नॉन होमोजीनियस रिकरेंस रिलेशन, नॉन होमोजीनियस। ठीक है, अगर Fn की वैल्यू 0 है, राइट हैंड साइड ऑफ एनी रिकरेंस रिलेशन इज 0, देन इट इज नोन एज द होमोजीनियस रिकरेंस रिलेशन। और अगर Fn right hand side, Fn does not equals to 0, right hand side does not equals to 0, then it is known as the non-homogeneous recurrence relation. Next, अब हम बात करते हैं सॉल्यूशन ऑफ अ रिकरेंस रिलेशन। सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं किसी भी लीनियर रिकरेंस रिलेशन का। रिलेशन तो जनरली जब हम सॉल्यूशन की बात करते हैं तो इसको हम बोलते हैं टोटल सॉल्यूशन। हम टोटल सॉल्यूशन निकालते हैं। समटाइम्स कुछ बुक्स में इसको दिया हुआ होगा जनरल सॉल्यूशन, कुछ बुक्स में जब आप स्टूडेंट्स रीड करेंगे, बुक्स रेफर करेंगे, तो कुछ बुक्स में दिया होगा कंप्लीट सॉल्यूशन। आप कोई भी टर्म यूज कर सकते हो। ओके, रिकरेंस रिलेशन के सॉल्यूशन की अगर हम बात करें, उसे हम बोलते हैं टोटल सॉल्यूशन। समटाइम्स वी कॉल्ड इट एज जनरल सॉल्यूशन, समटाइम्स वी कॉल्ड इट एज कंप्लीट सॉल्यूशन। तीनों में से आप कोई भी टर्म यूज कर सकते हो। तो वो होता है आपका होमोजीनियस सॉल्यूशन, होमोजीनियस सॉल्यूशन प्लस पर्टिकुलर सॉल्यूशन, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। होमोजीनियस सॉल्यूशन के केस में हम कंसीडर करते हैं Fn इक्वल्स टू 0, और पर्टिकुलर सॉल्यूशन के केस में हम कंसीडर करते हैं Fn डज नॉट इक्वल्स टू 0। यानी हमें रिकरेंस रिलेशन का सॉल्यूशन निकालने के लिए उसका होमोजीनियस सॉल्यूशन निकालना होगा, उसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना होगा। होमोजीनियस सॉल्यूशन को निकालने के लिए हम Fn 0 कंसिडर करेंगे, एंड नॉन होमोजीनियस सॉल्यूशन या पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालने के लिए हम Fn डज नॉट इक्वल्स टू 0 करेंगे, और दोनों सॉल्यूशन का एडिशन करके जो आएगा दैट विल बी द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ लीनियर कांस्टेंट कोफिशिएंट लीनियर रिकरेंस रिलेशन। सो स्टूडेंट्स, आपको रिकरेंस रिलेशन के बेसिक समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम होमोजीनियस सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करते हैं रिकरेंस रिलेशन का, उसको डिस्कस करेंगे। इन केस इफ यू हैव एनी क्वेरी, you may ask me through the comment, and thank you so much.